Welcome to Rasastra class. Myself, Reverend Dr. Devashish Panigai, Faculty of Biology Science. Today, we are going to discuss session number 45 regarding classification of Rasaushadhi. So, before proceeding, Aushadhi or formulations, we should know what are the classification of Ayurvedic formulations. Ayurvedic formulations are known as Kalpanas also. It can be of two types. One, Aushadhi Kalpana. Number two, Ahara Kalpana. Ahara Kalpana is also known as Pathya. Now, we will discuss on only Aushadha Kalpana. Aushadha Kalpana can also be subdivided into primary Kalpana and derived Kalpana. Again, it can be classified on route of administration. On the basis of route of administration, it can be subdivided into two types basically, broadly, Bhaya-kalpana, formulations meant for external applications, that is Malahara, Lepa, Taila, etc. Number two, Abhyantara kalpana, formulations meant for internal administration, that is Churna, Vati, Kasaya, Leha, Bhasma, etc. Classification of Ayurvedic formulations, again, Aushadhi kalpana can also be subdivided into Urjaskara, that is Rasayana Vajikarana, Rogagna, that is to cure the disease, and Apunarbhava, that is Dehasiddhi purpose. Ayurvedic dosage forms, solid dosage form, Gutika, Bati, Parpati, Pottali, etc. Semi-solid dosage forms, Avaleha, Paka, Lepa, Mrita, etc. Liquid dosage forms, Arista, Asava, Rasaya, Taila, Arka, etc. Powder, Churna, Bhasma, Labana, Pisti, etc. Again, the Aushadha Kalpana can be subdivided into Kastaushadhi, herbal formulations, and Rasaushadhi, herbo-mineral formulations. So, you all know the advantages of Rasaushadhi, Alpamatra Upadagitvat reference. And in Kastaushadhi, there are some limitations. Also, Rasaushadhi also have some limitations. In every cases, Rasaushadhi cannot be given due to some limitations regarding drug toxicity, metal toxicity, etc. And Kastaushadhi have some limitations regarding the dose, regarding the taste, regarding the time of action, etc. So here we will concentrate on Rasa Yoga or classification of Rasaushadhi only. So Rasaushadhi also Bhaya Kalpana, that are Lepa Malahara containing Rasa Yogas, and Abhyantara Kalpana, Bhasma, Khalviya Rasayana, Parpati, Pottali, and Kupipakko Rasayana. One classification among these are classical medicines that are described in Schedule 1 of Drugs and Cosmetic Act, around 54 classical books, and according to the classical books, those formulations are prepared, is known as classical formulations. And another one can be classified as patent and proprietary medicines, Anubhuta Yoga, etc. So all these formulations can be summarized under Parada Murchana. So what we already have discussed, Murchita Parada Guna, Murchitvat, Harati Rujam, Bandhanam, Anubhuya, Muktidau Bhavati, Amari Karoti Hi, Mutam, Ko Anya Karunakara Sutam. According to Rasatna Samucchay. जब पारद मूर्छित हो जाता है तो रोगों को नाश करता है और बंधन से मुक्ति देता है, यानी कि जीव मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये हेल्प करता है, क्योंकि हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम योग आदि द्वारा मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, और इसीलिए अमर ही कर लेता है
तो इसीलिए पारद से ज्यादा करुणाकर कोई और नहीं हो सकता। रेफरेंस नंबर 2, मारितम देह सिद्ध्यर्थ मूर्छितम व्याधिनाशनम। व्हेन इट इज forms to bhasma form or bhuta form, it can be used as deha siddhi or for mukti, and when it is in murchita form, it can be used as vyadhinasana. Rasa bhasma kvachit hoge deharthe murchita kvachit. So rasa bhasma can be used for deha siddhyartha and for murchana purpose also. So murchana tattat vidhi prabhedena rasa अव्यभिचारित व्याधिघातकता या स्यात् सामता मूर्छना विधि। जिस प्रकार से पारद में व्याधिघातकत्व पोटेंसी को लाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, इस चीज को मूर्छना बोला जाता है। अथवा अव्यभिचारित व्याधिघातकत्व मूर्छना अकॉर्डिंग टू आदित्य प्रकाश, जिस विधि से बिना साइड इफेक्ट का पारद में व्याभिचार रहित रोग नाशन शक्ति उत्पन्न किया जाता है, वो मूर्छना होता है। मूर्छित हरित व्याधि अकॉर्डिंग टू शब्द कल्पद्रुम, जो जिससे व्याधि का नाश होता है वो मूर्छना होता है। मूर्छित व्याधि घातक रसेंद्र सार संग्रह, जिससे व्याधि का नाश होता है, सेम मीनिंग। मूर्छित व्याधि नाशनम रस रत्नाकर, मूर्छना से व्याधि का नाश होता है। मूर्छित गदहुत तथैव अकॉर्डिंग टू योग रत्नाकर, मूर्छना से गद रोगों का खरण होता है। तो रसरत्न समुच्चय ने और बता दिया कि यह श्लेष्म अनिल, कफ अनिल, वात और पित्त दोष समनि स्वरोगा पह मूर्छित, जिससे तीनों दोषों का नाश होता है, उसको भी मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना वैरायटी, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्वगंध मूर्छना और निर्गंध मूर्छना। ऑल दीज आर फॉर्मुलेशंस। स्वगंध मूर्छना, स्वाग्नि मूर्छना अगेन सब डिवाइडेड, एंड निराग्नि मूर्छना। अंतर्धूम स्वाग्नि मूर्छना कैन बी subdivided अंतर्धूम, बहिर्धूम एंड निर्धूम। निर्गंध मूर्छना कैन बी subdivided into स्वाग्नि मूर्छना एंड निराग्नि मूर्छना। All these are categories of rasausadhis. One formulations can be like स्वाग्नि, स्वगंध मूर्छना, स्वाग्नि मूर्छना, it can be of रस सिंदूर, मकर ध्वज etc. निराग्नि मूर्छना, जिसमें अग्नि नहीं है, जो खरलीय रसायन है, वो सारे निराग्नि मूर्छना हो सकता है। अंतर्धूम बहिर्धूम मेथड में हम बहुत सारे कुपिपक्व मेथड को, कुपिपक्व रसायनों को बना सकते हैं। ऐसे ही निर्गंध मूर्छना, जिसमें गंधक नहीं है, जैसे कि बाला सुंदर आदि, ये सारे स्वाग्नि और निराग्नि भेद से भी डिफरेंस इनका किया जा सकता है। मूर्छना का भेद अगेन इट कैन बी गंधपिष्टि, गंधबद्ध, गंधजीर्ण, रसगंध कदली, नाभिपिष्टि। ऑल दीज आर फॉर्मुलेशंस। So Parada Murchita Rasausadhi. Rasausadhi can be broadly subdivided into 4 types. That is Khalviya Rasayana or Kharaliya Rasayana. जो मेडिसिन स्वगंध या निर्गंध दोनों हो सकता है, लेकिन खलवी रसायन निराग्नि मोस्टली होता है। कुछ कंडीशंस में अग्नि के साथ, यानी कि जब उसका मर्दन करते हैं तो उसको हॉट प्लेट या जो खल्व होता है लोह खल्व में, उसको टेम्परेचर, तब तक खल्व में टेम्परेचर देते हुए मर्दन करते हैं, उस कंडीशन में ये हो सकता है। पर मोस्टली खल्वीय रसायन निराग्नि, स्वगंध या निर्गंध रसायन हो सकता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कज्जली, त्रिभुवन कीर्तिरस आदि। तो खरल की सहायता से भावना देते हुए जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो होता है खल्वीय रसायन। नंबर 2 परपटी रसायन। परपटी रसायन में पारद को और गंधक को या बिना गंधक का भी निर्गंध भी हो सकता है, जब इसको पापड़ जैसा कोटबंध बना दिया जाता है दवा के गोमय और कुछ स्पेसिफिक लीव्स के द्वारा, कदली पत्र, कुटज पत्र, नागवली पत्र आदि, तो इसको परपटी रसायन बोला जाता है। एग्जाम्पल रस परपटी, गगन परपटी आदि। कुपीपक्व रसायन। कुपीपक्व में कुपी, कुपी मतलब कांच कुपी, अतः बोतल में मरकरी आदि को जारण की, मरकरी के साथ पारद, मरकरी में गंधक या अन्य धातुओं का जारण किया जाता है। ये जारण का प्रकार है, जैसे कि इससे पहले मूर्छना जारण के बारे में आपको बताया गया है। तो इसमें जो कंपाउंड फॉर्म होता है कुपी के बीच में, या कुपी में भी तीनों प्रकार का गलस्थ, तलस्थ और उभयस्थ, इस प्रकार से फॉर्मुलेशंस बनाया जा सकता है। ये भी स्वगंध और निर्गंध हो सकता है।
और इसमें भी अंतर्धूम बहिर्धूम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रस सिंदूर, स्वर्णबंग, रसकर्पूर आदि। नंबर 4 पोटली रसायन। तो पोटली रसायन एक प्रकार के पोटली यानी कि जो फैला हुआ चीजें उनको हम पोटली में बांध देते हैं, कम जगह वो अधिकार करता है। वैसे ही जब पुराने समय में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं था, कहीं पर उसको पैकिंग की सुविधा नहीं था मेडिसिन में, तो बहुत सारे मेडिसिन को मिक्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लड़ाई में जाएंगे लोग, घोड़े पे बैठ के जाएंगे, इसलिए उसको पोटली ऐसा बांध के रखा जाता था और जरूरत के समय पे उस पोटली को घिसकर डोज तैयार किया जाता था। उसको पोटली रसायन कहा जाता है। इससे एग्जाम्पल में रसगर्भ पोटली, हेमोगर्भ पोटली आदि रसायन आते हैं। So classification Rasakalpas, Paradamurchitakalpas, as per method of preparations, it can be subdivided into Kharaliya Rasayans, can be prepared in Kharala, Parpati Rasayans, पापड़ जैसा हो जाता है, पोटली रसायन उसको बांध के बहुत सारे कंपोजिशंस को बांध के एक गोलक जैसा, एक कैप्सूल जैसा बना दिया जाता है। फुगाकार खंड हो सकता है, शिखरार अंबकार हो सकता है, और कुपीपक्व रसायन जिसमें कांच कुपी में बालू का यंत्र में बनाया जाता है जो कंपाउंड, वो है कुपीपक्व रसायन। सो खल्य रसायन जो खरल के थ्रू होता है मर्दन भावना आदि के द्वारा। पर्पटी रसायन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अभ्रक पर्पटी, गवर्नक पर्पटी, अष्टामृत पर्पटी, ताम्र पर्पटी, पंचामृत पर्पटी, प्राणदा पर्पटी, बोल पर्पटी, भैरवानंद पर्पटी आदि। कुपीपक्व रसायन जो कांच कुपी में रस, सिंदूर, मकर ध्वज आदि बनाया जाता है। और पोटली कल्पना विस्तारितस्य द्रव्यस्य कल्पभावना पोट्टम पोटली पोट्टमलानि ग्रहिणाति इति। तो ये पोटली को हम एक ही जगह में मिला देते हैं बहुत सारे मेडिसिन को या कोई स्पेसिफिक कंपोजिशंस को, तो इसको पोटली बोला जाता है। This session is powered by digital version 2.0 with Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, then mention in comment box. I will resolve it. Thank you. Sarve Santu Niramaya.